नमस्कार. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. अब हमने कालपुरुष कुंडली को अच्छे से समझ लिया, इसके सभी भावों को, और हमने इस कुंडली को देखना है कि ये कुंडली जो कालपुरुष की कुंडली है, यानी कालपुरुष यानी हम वी आर लुकिंग एट द time's movement basically. Now the time has the representation like this, in the various houses. Kal Purush means time. Okay, now that we have to see the movement of the time, what happened actually that caused the pandemic COVID-19. We have to see the cause, we have to see how it affected the whole world, and then we have to see whether we will be able to reach to the resolution or not. Okay, so we have to see that. Now after understanding the Kalpurush Kundli, let's move to the time that actually the lockdown started. Officially the government announced on 24th March 2020 that there will be lockdown for the whole country, and because we don't have the remedy and the cure or treatment of COVID-19. Okay, then the prevention can save us. Only our efforts, our isolation, our quarantine time, and our various precautions can save us from this pandemic, because we don't have the treatment for this COVID-19, because the disease has come from the foreign country, China. Okay, and the pandemic started from there, and now slowly it reached to the various countries, and of course India has to also go through that. We can't escape from that disease. So now the whole worldwide, we are in the fear of COVID-19, and we are suffering from the disease because we didn't reach to any cure, permanent cure and treatment of the disease. And now the prevention measures are going on, and we have gone through this from December to till date September, August. So we have gone through various phases of lockdowns and unlocked down also. Okay, so we have to see the movement, how the movement of the time has changed during this pandemic. क्योंकि कालपुरुष ने इस कुंडली में कालपुरुष ने एक महा बीमारी का सामना किया. वो बीमारी आनी ही आनी थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे सभी घरों में से हमारा छठा घर एक्टिवेट नहीं होता. ये बीमारी हमें आनी ही आनी थी. इसके क्या कॉजेस हुए, क्योंकि बीमारी हर बार आती है, ऐसा नहीं है कि हर बार गोचर के ग्रहों की वजह से ये घर एक्टिवेट होता है. तो बीमारी आती है, उसके निदान होते हैं, पर क्या ये एक बीमारी की बात नहीं, यहाँ महाबीमारी की बात हो रही है, पेंडेमिक की बात हो रही है, एक ऐसी इनक्यूरेबल डिजीज की बात हो रही है जिसका क्योर अभी तक डॉक्टर किसी एक परमानेंट क्योर और ट्रीटमेंट पे नहीं पहुंच पाए हैं. एंड वी आर स्टिल इन द weak position, chaos, that whether we will be able to get the vaccine for this COVID-19, and we will be get the treatment of coronavirus. Okay, so we have to see what is the cause. So the first thing I'm going to discuss is the cause. Okay, so let's see. And before even starting on this kundli, I want to focus on the mainly 4 planets here, because these 4 planets affect our life very deeply, because they stay in one Rashi or one house for the longer period. So we are certainly going to affect from that. Okay, now we have to see, first of all, before we proceed to this kundli, we need to understand these 4 planets again, because maybe you have the idea of how these planets work, but still for the new viewers, and for for everyone of us, let us again see the planets and their causes. Now
इस कुंडली में कालपुरुष की कुंडली में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कालपुरुष के साथ ही हुआ, वक्त ही हमारे लिए बेरहम हो गया, वक्त ने ही करवट बदली, वक्त ही खराब हो गया, तो हम वक्त की ही तो बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कालपुरुष कुंडली को तो देखिए, ये तो कंट्रोल, इट इज कंट्रोल्ड बाय डिवाइन ग्रेस, बेसिकली द होल कुंडली इज कंट्रोल्ड बाय डिवाइन ग्रेस, गॉड। सो व्हाट हैपेंड बेसिकली, ऐसा क्या हुआ कि इस बीमारी ने इन केवल एक देश को नहीं, सभी देशों को प्रभावित किया, और बहुत कम लोग हैं जो अछूते रहे इस बीमारी से। All of us, we come in the contact of this disease. Okay, so we have to see the cause. Now हमें सबसे पहले देखना है इस कुंडली के अकॉर्डिंगली कि यहाँ पर कालपुरुष का एक नंबर है एरीज लगन मंगल। मंगल यहाँ पर उच्च का होकर 10वें घर में बैठा है 1 डिग्री पर। जब बीमारी लॉकडाउन हुआ शुरू 24 मार्च को, उस समय ग्रह स्थिति ये थी, मंगल उच्च का 1 डिग्री पर। उसके बाद हमने देखना है शुक्र। शुक्र अपने से 12वें में 25 डिग्री पर। उसके बाद है हमारा जेमिनी साइन, 3rd हाउस जेमिनी साइन, जिसमें राहु एग्जॉल्टेड है यहाँ पर। 4th हाउस चंद्रमा का, 5वां घर सूर्य का, 6ठा घर बुध का, जो कि बीमारी से इस राहु के एक्टिवेट होने से ये 3rd हाउस और 6th हाउस एक्टिवेट हुआ है। सो वी विल बी डीलिंग विद दिस हाउस। ये बीमारी लेकर आया, इसलिए क्रॉस लगाया, राइट नहीं लगाया। सो ये बीमारी का घर एक्टिवेट हुआ। ये हमारी ऑपोजिशन है, ये हमारी लॉन्जिविटी एंड डेथ है। 9th हाउस है हमारा जुपिटर। अब देखिए राहु केतु हमेशा 1/7 एक्सिस पे होती है, तो राहु केतु यहाँ पर एक्सॉल्टेशन में है, तो लेकिन ये यहाँ पर अगर हम 9वें घर में देखें तो जुपिटर अपने ही घर में है 29 डिग्री पर, और जो कि शीघ्र ही नीच अभिलाषी है। अपनी कैप्रिकॉन साइन में जुपिटर यहाँ पे नीच का हो जाता है, और ये शीघ्र ही यहाँ पहुंचने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर जब ये पहुंचा तो इस बीमारी को हमने देखा कि कैसे ये बीमारी और भी फैलती गई और किस तरह से इसने हमें प्रभावित किया। तो यहाँ पे देखिए शनि अपनी ही राशि में है, कालपुरुष में इस समय शनि प्रबल है, शनि अपनी ही राशि में है, और मंगल 1 डिग्री पर है। शनि 11वें घर का मालिक है, अपने से 12वां है, लेकिन पुष्ट भाव है। और यहाँ पर आप देखिए 12वें घर में हमारी ग्रह स्थिति में सूर्य, जो कि हमारा 5th लॉर्ड है, यहाँ पर सूर्य 9 डिग्री पर है। सन हमारा हमारी आत्मा का कारक है, परमात्मा भी है हमारे लिए, आत्मा भी है। सूर्य को कहा गया है परमात्मा, सूर्य उसका कारक है। सो एट द टाइम दिस इज सन एंड मून टुगेदर, लगभग 6 डिग्री और 9 डिग्री अमावस के आसपास का टाइम है। ओके, तो ये ग्रह स्थिति थी। अब हम इसमें मुख्यतः 4 ग्रहों की बात करेंगे। बीमारी कहां से आई? राहु इज द प्लैनेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ये बीमारी कहां से आई? राहु इज द कॉज। अब ये तो नहीं है कि हर बार राहु एग्जॉल्टेशन में आता तो हर बार वो बीमारी लेकर आएगा, लेकिन इसके साथ साथ हम बाकी वेरियस फैक्टर्स भी देखेंगे कि हाउ इट वर्क। मेरे ये 2 घर बुध को रिप्रेजेंट करते हैं, 3रा और 6ठा घर, ठीक है। इसमें राहु का आना जो कि एग्जॉल्टेशन में है, राहु जहां पर वह बैठेगा, हालांकि राहु जो है 3रे, 6ठे, 10वें और 11वें घर में अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि मैलेफिक्स दे गिव द गुड रिजल्ट इन द उपाच्य हाउसेस। 3रा एफर्ट्स, 6th fighting spirit, 10th my karmas and profession, and 11th is my gains basically. So Rahu, how it influenced these houses. So it is said that Rahu is very good, exalted Rahu in the 3rd house, Upachya houses, in the communication house. So Rahu is very good here. But Rahu ने बीमारी को, राहु देखिए, राहु इज द प्लैनेट ऑफ एक्चुअली जहां बैठता है उस चीज को इनहैंस करता है, लेकिन राहु एक भ्रम का, संदेह का और एक संशय का प्लैनेट भी है। धुआं कहा जाता है, जिसमें चीजें विजिबल नहीं होती, अदृश्य शक्ति है, आसुरी शक्ति है। इट्स अ प्लैनेट ऑफ मटेरियलिज्म। राहु, क्योंकि हमें पता है कि राहु केतु कैसे बने हैं, जब अमृत मंथन हुआ था
तो देवताओं के रो में एक असुर खड़ा था जिसने अमृत पीने की कोशिश की, तो इंद्रदेव ने उनका सर काट दिया, तो सर बना, हेड बना, द हेड ऑफ दैट डेविल बिकेम राहु, एंड द धड़ जो नीचे का था वो बना केतु. सो राहु इज द 5 सेंसेस अबव, बिकॉज हमारे 5 सेंसेस हमारे फेस को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे सिर को, और हमें सारी जो मटेरियलिज्म, मतलब जो संसार का वैभव, सुख, या जो भी संपदा है, जो भी हमें ऐश्वर्य है, जो भी खान पान, जो भी हमें संसार के जितने रस हैं या उसमें जीवन के रस हैं या संसार के रस हैं, वो में राहु देता है. राहु इज द प्लैनेट ऑफ मटेरियलिज्म, तृप्त करता है, बिकॉज अमृत लेने से उसको तृप्ति मिली. सो राहु इसी तरह हमें तृप्त करता है. और केतु को कहा गया है, हालांकि राहु केतु कार्मिक प्लैनेट है, तो राहु डिटैच भी करता है. राहु आपको हर चीज से डिटैच करता है. आप धर्म हो तो अधर्म में लेके जाएगा, ठीक है. अगर आप ज्ञानी हो तो अज्ञानता में लेके जाएगा. अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो बुराई की तरफ लेके जाएगा. तो राहु इज टोटली डिपेंड्स कि किस राशि में है और किस ग्रह के साथ है. यहाँ पे एक्सॉल्टेशन का है, इसकी परम मित्र की राशि है बुध की. तो हमारे इस पैंडेमिक में हमें पता है कि राहु यानी फॉरेन बीमारी, बीमारी के घर में बैठा राहु, तो फॉरेन बीमारी, क्योंकि राहु जो है मटेरियलिज्म के लिए तो हिसाब से अच्छा है, यानी कम्युनिकेशन बुध की राशि में है. So for trade, for commerce, for communication, for anything between the two countries or the two people or between the two transactions, it is very good. But Rahu is very unwelcome for the health point of view. राहु जहां बैठेगा उस घर के सॉफ्ट चीजों को खराब कर देगा और जो स्थूल चीजें हैं उनको क्या बोलते हैं, बढ़ावा देता है. यानी कि यहाँ पर बुध यानी कि कम्युनिकेशन हो रहा है. जो आप भी देखिए इस पेंडेमिक में राहु ने हमें जीवित भी रखा, मारा नहीं है हमको, क्योंकि हमने सारा ट्रांजैक्शन हमने ऑनलाइन किया. राहु इंटरनेट है, राहु आपके ऑनलाइन सारे ट्रांजैक्शन है. इनफैक्ट जो जिस वर्चुअल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन, इट इज थ्रू राहु. So Rahu became so active and it made everyone so active through communication. We kept ourselves alive only through communication. Information. Everybody was poured with information. You do this precaution, that precaution, okay, everything. It is only through Rahu. So Rahu played 2 roles here. First of all, destroying the, health issue, ourselves on the health issue, same Rahu, and saving ourselves on the, for surviving ourselves. हम जिस इशू से राहु के दोनों चीजों से प्रभावित हो रहे हैं. राहु हमें जहां इंटरनेट की सुविधाएं दे रहा है, हम पूरी दुनिया में कनेक्टेड है, सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, सारी प्रिकॉशंस हमें मिल रही हैं, सभी तरह के क्योर ट्रीटमेंट हमें नजर आ रहे हैं. वर्चुअल वर्ल्ड में हमें हम जीवित थे, जिस हम रियल वर्ल्ड में राहु ने हमें खत्म कर दिया, तो वर्चुअल वर्ल्ड में ही केप्ट अस अलाइव. सो राहु प्लेड द 2 रोल. राहु का काम क्या है? किसी भी चीज को बढ़ा देना, इनहांस कर देना. So communication becomes so prominent, so visible, so effective during that period, and still it's going on. So trade, commerce बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, बहुत सारी चीजें अब ऑनलाइन ही है. In fact, we are surviving ourselves on online. Education, trade, all business thing. Housewives are keeping therefore busy with the all kind of entertainment. सब कुछ आपका चल रहा है उसके थ्रू, वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू आप एंजॉय भी कर रहे हैं, बिकॉज मर्करी इज द प्लैनेट ऑफ एंजॉयमेंट, इंफॉर्मेशन. इट इज अ ड्यूल राशि, सो इट्स प्लेइंग द 2 रोल हियर. प्लस माइनस, राहु इन द ड्यूल राशि इज प्लेइंग द रोल ऑफ प्लस माइनस. प्लस फॉर मेकिंग आवरसेल्फ अलाइव इन द इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, एंड नेगेटिव फॉर किलिंग अस हेल्थ वाइज, because it is in the disease house. वैसे भी लगन से अष्टम और अष्टम से अष्टम भाव भी आपका यहाँ पर राहु को ही रिप्रेजेंट करता है. अब आ जाता है हमारा ये छठा घर, ये भी राहु से ही गवर्न है, इसने इसको एक्टिवेट किया. दिस हाउस वाज आल्सो एक्टिवेटेड बाय राहु. कोई दृष्टि नहीं है,
दृष्टि इसकी 5वीं यहाँ है, 7वीं यहाँ है और 9वीं यहाँ पर है। राहु ने बुध को भी, इसी के थर्ड लॉर्ड को, बुध को कितना, मतलब यहाँ देखिए लाभ स्थान में बुध बैठा है और राहु से ही एस्पेक्ट है। सो हमें ऑल उस समय की कुंडली है, तो उस समय में हमें सारी कम्युनिकेशन से लाभ मिल रहे थे। ऑल द इंफॉर्मेशन टोटली spread throughout the country, how to save ourselves, how to take the precautions, how to keep ourselves alive, how to isolate oneself, everything that came from Rahu. So Rahu is not, because Rahu itself, इसके पास है तो आसुरी एक नेचर भी गुड, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक किलिंग है। मैंने आपको किलिंग का बताया क्योंकि ये हमारे लिए, देवताओं के लिए असुर तो ऑफकोर्स ठीक नहीं है, तो यहाँ पर ये उस हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है हेल्थ वाइज, बट फॉर द अदर थिंग्स राहु इज वेरी गुड। एक्सॉल्टेशन राहु, सो आई थिंक सो, बिकॉज आई थिंक दैट फॉर्मली राहु इज ऑल्सो केप्ट अस अलाइव थ्रू वर्चुअल वर्ल्ड, बट यहाँ पर ये राशि प्रभावित हुई बीमारी की। नाउ राहु इन द जेमिनी से 3 नंबर की राशि ब्रीदिंग को बताती है। नाउ द डिजीज इज थ्रू ब्रीदिंग, सांस, नाक और मुंह, इन 3 चीजों को इफेक्ट कर रहा है राहु बैडली। 3 नंबर की राशि बुध की, ओके। एंड 6th हाउस इज हमारा ये स्टमक को रिप्रेजेंट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, 6th हाउस। So and now the Rahu's aspect is also on the राहु का एस्पेक्ट, ये 2 एक्टिवेट हाउस हुए। राहु का पंचम दृष्टि पड़ी 7वें घर पर, और ये घर जो है लिब्रा राशि का है, तुला राशि का। तो यहाँ पर इट्स अबाउट एक्टिवेटिंग दिस हाउस ऑल्सो, द डिजीज इज स्प्रेडिंग थ्रू, आपके उसमें जा रही है। और क्योंकि ये मार्केश घर है, ये इस कुंडली के अकॉर्डिंगली आपका 2रा और 7वां घर शुक्र के अधीन आता है, और शुक्र आपका मार्केश है यहाँ। एंड राहु इज कीपिंग द एस्पेक्ट ऑन दिस हाउस, एक्टिवेटिंग इट, मेकिंग इट मोर हार्मफुल। हालांकि ये इसकी अपनी राशि है, तो ये मटेरियलिज्म को बढ़ाएगा। शुक्र मतलब शुक्र के कारतत्व को बढ़ाएगा, लेकिन शुक्र की जो बीमारियां हैं उसको भी तो बढ़ाएगा ना। और ये मार्केश है, यहाँ पर लगन में आ गया, कालपुरुष की कुंडली में मार्केश आ गया प्रोमिनेंट, 25 डिग्री इस कुंडली में ये मार्केश है। और ये आपका ये घर भी 8th हाउस इज ऑल्सो मार्केश, यानी इफ द डेथ हैज टू कम, सो ईदर दीज दशा ऑफ दिस planet, 2nd house, 7th house और the 8th house should be running. So इस कालपुरुष कुंडली में इन हाउसेस का एक्टिवेट होना ये बताता है कि इसने राहु ने कैसे इसको प्रभावित किया, शुक्र को प्रभावित किया। शुक्र हमारा यहाँ पे मार्केश है, मंगल के लिए शुक्र अच्छा नहीं है, लगन में बैठा 25 डिग्री का है, मार्केश है, लगन में बैठा है, और यहाँ पर राहु इसको एक्टिवेट कर रहा है। मटेरियलिज्म भी तो बढ़ा रहा है राहु, घर बैठे बैठे हम इतना एंजॉय कर रहे हैं उसको, we are enjoying our family because चौथे से चौथा है, शुक्र है, तो we enjoyed the confinement, isolation and quarantine time। घर में बैठे लोग एंजॉय कर रहे हैं, बाहर बीमारी चल रही है और हम एंजॉय भी कर रहे हैं। see the both the signification is there, the same way, the one way it is killing us and the one way it is making us survive also, okay। So it's Rahu। now comes 8th house। अब जो मंगल है कालपुरुष के हिसाब से, मंगल उच्च का 1 डिग्री पर बैठा है 10वें घर में, शनि की राशि। इट्स वीक हियर एंड शनि इज परमानेंट इन ओन हाउस मोस्ट, ये मंगल उच्च का है, तो शनि उसको अपने कंट्रोल में रखेगा क्योंकि ये इस घर का मालिक है। मैं कितनी ही पावरफुल पोजीशन में हूं, ठीक है, आई हैव ग्रेट स्ट्रेंथ, ग्रेट विगर, ग्रेट करेजमेंट, बोल्डनेस, बट इफ आई गो टू माई एनिमीज हाउस I won't be able to perform as अगर ये शनि नहीं होता तो शायद मंगल अपनी पोजीशन में तो वे इतनी नहीं होता, इसको प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती। बट यहाँ पर
मंगल उच्च का होते हुए शनि के अधीन है। यहाँ पर शनि अपनी राशि में प्रबल है 5 डिग्री का और मंगल 1 डिग्री का। अब ये देखिए 8वें घर का मालिक है मंगल, उच्च का होकर बीमारी, लॉन्ग इलनेस, उच्च का होकर बैठा है। और राहु की दृष्टि यहाँ पर 9वीं दृष्टि यहाँ पर आ रही बुध पर। सो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। अभी 7वीं को डिस्कस नहीं किया हमने, अभी हम 8th हाउस की बात करें। 8th हाउस में अब देखिए मंगल उच्च का है, ठीक है। अब शनि को यहाँ पर जब मैंने राहु की आपको थोड़ी सी सिग्निफिकेशन बताई, केतु हमारा कन्फाइनमेंट का प्लेनेट है। केतु को वैसे मोक्ष कारक कहा जाता है। देखिए राहु जितना हमें मटेरियलिज्म में जाता है, लेके जाता है, केतु हमें उतना ही स्पिरिचुअलिज्म में लेके जाता है। राहु आपको पूरी दुनिया में घुमाएगा, हैरी पॉटर, जादू की छड़ी, बैठो और घूमो, एरोप्लेन्स, बैठो घूमो। So it's about moving in the air. But Ketu, it's all internal, your inner strength, inner energies, inner knowledge is becoming more and more. एक ही जगह बैठ के आप तपस्या कर रहे हो, वो केतु है। और एक दुनिया में बैठकर एक जहाज है या एक छड़ी है, हैरी पॉटर की वो जो छड़ी है, जादू की छड़ी, उसमें बैठ के आप दुनिया घूम रहे हो, वो राहु है आपका। सी बोथ द प्लैनेट, बट दे कंट्रोल द कार्मिक प्लैनेट है, ये हमें कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब आप देखिए कि शनि जो है हमारा मुख्यतः, क्योंकि हम इस कालपुरुष कुंडली में हम यहाँ पर पेंडेमिक की बात करें, महाबीमारी की बात करें, कोविड-19 की बात करें, तो शनि इज द कारका ऑफ डिजीज। शनि के पास एक बहुत अच्छी चीज है कि ये हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है और हमारे प्रोफेशन, द टाइप ऑफ प्रोफेशन वी विल बी इन, टाइप ऑफ कर्मस वी विल डू, ओके। If Shani is exalted, very कर्मठ। If Shani is नीच, कोई काम ही नहीं है जिंदगी में, निष्फल बैठोगे आप। So it's a Shani is the natural कारका of disease and the grief and depravity also। वंचित करता है शनि हमको, हर चीज से वंचित करता है। तो यहाँ पर एक दूसरे की पावर को ये आप कर रहे हैं, यहाँ पे नष्ट हो रही है शनि मंगल और मंगल शनि। तो ये विस्फोटक तो थी। अब जुपिटर के यहाँ पर आने से, जुपिटर 29 डिग्री पर था, जुपिटर ने जैसे ही इसको ज्वाइन किया है, तो जुपिटर जैसे ही 10 नंबर में यहां पहुंचा, तो इसने तीनों की कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, इस समय जुपिटर पावरफुल है, लेकिन जैसे ही जुपिटर जो हमारा सेवियर है, जो हमारा फिजिशियन है, ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, कहीं ना कहीं जो हमारी जीवकार का, जुपिटर इज डिवाइन ग्रेस, रिलीजन, एजुकेशन, फाइनेंस, हमारी सभी चीजों का कारण जुपिटर है। इसको जीवकार का बोलते हैं। ये देखिए जीवकार का लिखा है मैंने यहाँ पर, ये हमारा जीवित्व है, हमारा शरीर है। जुपिटर हमारे शरीर को जो चला रहा है वो ईश्वर भी है, और जिस शरीर से हम काम कर रहे हैं वो भी जुपिटर है। सो एवरीथिंग दैट इज गुड फॉर अस इज जुपिटर। इट बिकेम नीच का यहाँ पर, और जिसने हमें जीवन प्राण देना था, हमारे लिए जीवकार का था, वो भी गया, यहाँ पर नीच का हो गया। हालांकि नीच की इसने डिग्री नहीं ली, नीच का ये 10वें भाव में 5 डिग्री का नीच का होता है, जो कि अगले साल होगा, 2021 में होगा। लेकिन इसने इसी ड्यूरेशन में जुपिटर ने अपना ट्रांजिट में ये घर से 10वें घर में गया, और उसके बाद फिर से वो यहाँ पर आया है, और वापस आकर जुपिटर फिर से अब धनु राशि में रहा है। 2 महीने रहेगा ये यहाँ पर, क्या बोलते हैं, 13 सितंबर को डायरेक्ट हो जाएगा, और 13 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक जुपिटर विल बी इन द वेरी पावरफुल स्टेट, एंड दैट विल सेव अस एंड वी विल गेट द क्योर ऑल्सो। कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा हमें इसमें, ब्रेक थ्रू, ओके, वी विल गेट एनी ब्रेक थ्रू, कोई ना कोई तो मिलेगा। जो इतनी सारी शोध चल रहे हैं, क्योंकि ये रिसर्च का हाउस भी है, जुपिटर जब वापस आएगा अपने घर में, तो 13 सितंबर से ऑनवर्ड 20 नवंबर तक इसने आ रहना, क्योंकि फिर से जुपिटर ने 13 महीने के लिए नीच का हो जाना है यहाँ पर। सो उस ड्यूरेशन में वी विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द 2020। अगेन यहाँ पर भी जुपिटर विल नॉट बी, it's okay in the income house, maybe people will start earning, and because of the jobs will get because of the Shani will get the job. Jupiter will be in this house लाभ स्थान में। हालांकि शनि का है, ज्यादा लाभ नहीं मिलेंगे हमें,
लेकिन फिर भी हमें कुछ कुछ पैसे हम कमाना शुरू करेंगे, नौकरियां लोगों को मिलेंगी और पैसे कमाएं, एंड देन इट विल बी द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन द ट्वेल्थ पाइसिस है, ओके, 12वीं राशि. So these I have told you the reason how it happened. अमावस, मंगल, उच्चकार, मतलब हम देखिए कन्फाइनमेंट में रहे, शनि ने हमें कन्फाइनमेंट दी, डिप्रिविटी में रखा, सब चीज़ों से नौकरियां गई लोगों की, शनि बिकम मोर प्रोमिनेंट देन मंगल. वी हैव दैट पावर बट वी यूटिलाइज दैट होल आवर स्ट्रेंथ, करेज, स्टेमिना, सिटिंग एट होम, प्लेइंग, मंगल क्या है, बैठे हो घर में काम कर रहे हो, ऑल लो डिग्री वर्क. शनि आपको हमेशा नीचे के काम देगा, नॉट द चेयर, इट विल गिव यू द रूम, सो विल वर्क लाइक अ लेबर, ओके, लाइक अ वर्किंग क्लास. सो दैट इज द रीजन हाउ दिस pandemic started. Because शनि 30 वर्षों के बाद अपनी राशि में आया. Now Shani is in the most powerful state. The malefics are becoming, when malefics are becoming more powerful, so it's not required. We will have to face दुख, कष्ट, बीमारी, तकलीफ, कर्जे, ये सब चीज़ों का, नुकसानों का. And if the benefics are, going down, they are less, potent in the transit. So we will lose. So Jupiter यहाँ पर हमें तब तक सेव कर रहा है. देखिए इतनी खराब सिचुएशन में भी हम घर में बैठ के सब कुछ करते रहे हैं, ठीक है. हालांकि इट वॉज नॉट द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर, क्योंकि जुपिटर काफ़ी 29 डिग्री पर था. धर्म में विश्वास खत्म भी हुआ, फिर भी हम, क्योंकि धर्म के स्थान पर बैठा है तो हम उसमें रहे. केतु ने हमें कन्फाइनमेंट दी कि तू हमें सब योग कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनल पावर्स को बढ़ाते रहे, योग कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, सो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग टू डेवलप योर इनर सेल्फ. बट यहाँ पर देयर इज केतु इज अ कन्फाइनमेंट, आई हैव ऑलरेडी read. So this is all about how the cause.